parameters. The next parameters is velocity. बच्चों वेलोसिटी क्या होता है? इट्स अ rate of change in position of object चेंज इन पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। thus displacement. So velocity it is represented by small v, which is equal to total change in position, divided by total time taken to change the position. Total time taken to change the position. To कोई कह रहा था ना वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड नहीं हुआ, ये देखिए हो चुका, taken to change the position. So my dear friends, जैसे कि आप मान लो, अब समझ लो कि आप ये x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस, ये y एक्सिस। x एक्सिस को बच्चों हम लोग यूनिट वेक्टर i कैप बोलते हैं और y एक्सिस को यूनिट वेक्टर j कैप बोलते हैं। इज इट क्लियर? सो अगर कोई पार्टिकल मान लो यहाँ कहीं है, इनिशियल पॉइंट P है, ये इसकी कोई पोजीशन वेक्टर होगा, से वेक्टर r1, और एक अनदर पॉइंट Q है जो होगा r2 पोजीशन वेक्टर, सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां से चलना चालू करता है और यहाँ पे पहुंचता है लाइक दिस, ये मान लो ऐसे कोई पाथ को फॉलो करता है, तो जो इसका वेलोसिटी होगा इसका v वेक्टर, which is equal to change in position डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा t, टोटल टाइम t इक्वल टू 0 से लेकर से t टाइम तक. So my dear friends, this distance is called, this green line is represent a delta r vector. This green line is represent a delta r vector, such delta r is equal to r2 vector minus r1 vector. लास्ट क्लास में हमने ये चीज देखी थी कि पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो वहीं से इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं. ओके, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और यहीं से आपको टर्म निकल के आता है वेलोसिटी का, which is equal to r2 vector minus r1 vector divided by t2 minus t1 और delta r vector divided by delta t. Is it clear? Yes, मेरे बच्चों, आपको वेलोसिटी भी दो तरीके की होती है. एक होता है बच्चों एवरेज वेलोसिटी, एक होता है एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा होता है so average velocity. What is the difference between average velocity and instantaneous velocity? So मेरे दोस्तों, average velocity में हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी सिर्फ बात करता है चेंज इन पोजीशन की, टोटल चेंज इन पोजीशन एंड टोटल टाइम टेकन. So it is the ratio of total change in position that is called displacement upon total time. So it is total displacement. It is also known as total displacement covered by the particle. Total displacement covered by particle divided by
total time taken to cover the distance, displacement. Total time taken to cover total displacement. This is called average, which is delta R, average velocity delta R over, this is change in position vector divided by time, and this change in position vector is called this is called change in position vector. इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? Displacement भी बोलते हैं. So it is the total displacement. Is it clear? Okay. Now next one is, what is the meaning of instantaneous velocity? So class में हम लोग ने instantaneous का means पढ़ा कि ऐसी velocity जो किसी particular time पे निकाली जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? Instantaneous velocity होता है. So velocity at a particular instant. Velocity at particular instant. Particular instant means कि delta t should be 0. Delta t approximate limit delta t tending to 0. Delta t की वैल्यू लगभग किसके इक्वल होनी चाहिए? 0 के इक्वल होनी चाहिए. तो if the approximate value of change in time tends to approximate 0, then we can say that the dv instantaneous is equal to limit delta t tending to 0 into delta r over delta t becomes v is equal to dr over dt. Dr over dt. So this dr over dt is called rate of change in position vector. This limit delta t tending to 0, limit delta t tending to 0, delta r over delta t, limit delta t tending to 0, delta r, this is total displacement upon total time. When delta t change in time अगर 0 के इक्वल है तो कल हम लोग ने स्पीड में देखा था ना, वो dr over dt के बराबर हो जाता है. तो वैसे ही इसको क्या बोलते हैं? dr over dt is called rate of change in position, rate of change in position vector. Okay. So later, for better clarification, I want to illustrate with the examples. Suppose we have a simple example. A car is moving along east direction at 3 meters and then takes a turn and moving along north direction with 4 meters. Time taken by total, cover a total journey, time taken by car to cover total journey is 10 seconds. Then find the average velocity and average speed of car. My dear friends, इस बार देखो इस क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछी है. एक कार है जो ईस्ट डायरेक्शन में भी जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में भी जा रहा है. पूरी जर्नी के टाइम पे उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड लगे. तो पूछा क्या गया है?
आपको ये बताना है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी. So let us see in this question. First of all, let us see the solution. इससे डिफरेंस भी समझ में आएगा आपको कि अगर मैं आपको बात करूं तो आपको पता है सर, ये होता है ईस्ट डायरेक्शन, ये होता है नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपका वेस्ट है और ये है आपका साउथ. इज इट क्लियर? सो मेरे बच्चों, सबसे पहले एक कार थी, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है जो कार को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस कार इज मूविंग along ईस्ट डायरेक्शन with 3 मीटर. इज इट क्लियर? हाँ ना, बोलना पड़ेगा. एंड उसके बाद वो टर्न लेता है और नॉर्थ की तरफ जाता है. नॉर्थ की तरफ जाता है कितना? 4 मीटर पर सेकेंड. 4 मीटर. ओके, इज इट क्लियर? तो अगर t इक्वल टू 0 पे यहां से चलना चालू करता है तो यहां तक जो कार है वो कितने टाइम में पहुंच जाती है? 10 सेकेंड में पहुंच जाती है. ये क्वेश्चन में बोला गया. सो मेरे बच्चों, अगर आपको ध्यान से देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल डिस्टेंस traveled by car, 5 meter. total distance covered by car, Sir, 7. Distance 7, displacement 5. distance is 3 plus 4, length of the path. This is 7 meter. Now the average speed is Sir, in question it is told to for calculate velocity, sir. also average speed also. दोनों Okay, ही sir. दिया गया, average velocity and average speed. Is it clear? So for Okay, average sir. speed, it is the total distance upon total time. Is it clear? So now the total distance is 7 by 10. So average speed is what, my dear friends? 0.7 meter per second. Is it clear? Now for average velocity. So average velocity is the displacement. So displacement is the minimum distance between initial position. So this is the initial position and this is the final position. So displacement बच्चों क्या होगा? This is called the displacement. So that this displacement is what? The magnitude of displacement is 5. So 5 means average displacement of car is delta S is equal to 5 meter. So velocity is, average velocity is equal to कितना होता है बच्चों? Average velocity is equal to total displacement upon total time. Is it clear? Is Yes, it sir. clear? So Yes, now sir. this average velocity is equal to total displacement is 5 times 10. Answer is 0.5 meter per second. So my dear friends, the speed is 0.7 meter per second and velocity is 0.5 meter per second. Any problem? Okay. Let us see one more example. Suppose the position of the particle varies with time such as x is equal to 3t square plus 5t plus 7. Then find the velocity of particle at t is equal to 3 seconds. My dear friends, आपको यहां पर पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम दी गई है और अब आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी बताओ 3 सेकंड पे. अगर 3 सेकंड का मतलब है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी पूछी गई है कि नहीं पूछी गई. दिस 3 सेकंड मींस वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम. तो जब भी अगर वेलोसिटी एज अ पर्टिकुलर टाइम पूछा जाता है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? बोलो.
Instantaneous speed, sir. Del T. Instantaneous velocity. So Yes, as sir. we know, the instantaneous velocity is what? Instant velocity का formula क्या होता है बच्चों? Sir, V is equal dx to by dt. dx over dt. dx over dt is called rate of change in position या फिर differentiation of position with respect to time. Differentiation of position with respect to time. So my dear friends, we can say that here the x is 3t square plus 5t plus 7. Here x is 3t square plus 5t plus 7. So tell me what is the differentiation of dx over dt. So the differentiation of 3t square is, the differentiation of 3t square is 60. The differentiation of 5t is 5 and the differentiation of 7 is 0. Thus the dx over dt is v. v is equal to 60 plus 5. At t is equal to, at t equal to क्या टाइम पूछा गया है बच्चों? 3 seconds. So at t equal to 3 seconds is, at t equal to 3 seconds, the v should be 6 into 3 plus 5. The answer is 18 plus 5 is 23 meter per second. Is it clear? So जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता वो यहाँ पर एक फॉर्मूला देख सकते हैं. अगर y इक्वल टू t टू द पावर n ऐसा कुछ भी दिया हो या x इज इक्वल टू t टू द पावर n, n कुछ भी हो सकता है. सो इसका डिफरेंशिएशन बेटा होता है जो भी पावर है उसको आगे ला देनी है, लिख देनी है और पावर में से एक को सब्ट्रैक्ट करना है. पावर जो भी है उसको आगे लिख दीजिए और पावर में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका जो रिजल्ट है वो यही आ जाएगा जो सामने लिखा है. जैसे 2t स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए तो t स्क्वायर लिखा है तो 2 आगे आ गया है और 2 माइनस 1 1 हो जाता है. इज इट क्लियर? यहाँ 1 है तो 1 आगे आ गया और 1 माइनस 1 0. दुनिया में किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है? 1 होती है. और किसी भी नंबर, किसी भी कांस्टेंट या नंबर का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है. ये बात भी याद रखनी है, किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है. इज इट क्लियर? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. is the next parameters is acceleration. Okay my dear. अच्छा, so before starting the acceleration, first of all हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों? यहाँ पर रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं. तो हम डिफरेंस देखते हैं वेलोसिटी और आपका स्पीड में. तो some important points about velocity and speed in rectilinear motion. Rectilinear motion means motion in one dimension. Okay, so we can say that first point is this. Listen very carefully. First point is this: if the object is moving along one direction, only one direction, means if the object is moving along one direction, if objects moving along in one direction, if the objects is moving along in one direction, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है, सो एज वी नो, हमने लास्ट टाइम देखा कि अगर डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, सो जो डिस्टेंस है वही क्या होगी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होगी. सो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, सो वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड भी कैसे होंगे? सेम होंगे. दैट्स व्हाई जो स्पीड होगी वही वेलोसिटी. इज इट क्लियर? ओके बच्चों. Now, if the object takes a turn,
and moving towards initial point. If object takes turn and moving towards initial point. Okay. So if object takes turn and moving towards initial position, so we can say that suppose this is the object A and this is moving towards B, and that takes a turn and moving towards A but reach a point C. Suppose the distance from A to B is L1 and B to C is L2. Is it clear? And it is start from t equal to 0 and reach the point T. किसी t टाइम पे वो C पॉइंट पे पहुंच जाता है बच्चों. ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या डिस्टेंस कितनी होगी इस केस में? डिस्टेंस कितनी होगी? तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ. तो टोटल लेंथ बेटा कितनी दिख रही है इसकी? L1 प्लस L2. तो डिस्टेंस हो गया L1 प्लस L2. एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? L1 minus L2. So displacement is L1 minus L2 and this is called the displacement. Is it clear? So it is L1 minus L2. So here the distance does not equal to displacement. So velocity is also not equal to speed. So speed कितनी आ जाएगी बच्चों इस केस में? L1 plus L2 by T. Is it clear? And velocity कितनी आ जाएगी बच्चों? L1 minus L2 by T. Is it clear? So अगर एक रेक्टिलिनियर मोशन में ऑब्जेक्ट अगर एक ही डायरेक्शन में जाता है, so हम ऑलवेज क्या यूज करते हैं? सी जो फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए यूज हुआ है वही फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होगा. जो फॉर्मूला स्पीड के लिए यूज हुआ है वही फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए यूज होगा, बिकॉज इन वन डायरेक्शन द स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर सेम टर्म्स. बट if the object takes a turn and moving towards the initial position, so we have different distance and different displacement. Both are not equal. Thus, speeds and velocities are also not equal. Is it clear? Now, next parameters is acceleration. These parameters are very, very important to learn physics. Basically, for create a confidence or acceleration. Okay, let us see the acceleration. My dear friends, acceleration is the total change in velocity upon total time taken to change the velocity. Simple acceleration. Acceleration, it is represented by small a. It is total change in velocity upon total time taken to change the velocity. Okay, means if the object initially moving with a speed v1 and have the acceleration and the velocity v2, this time is t1 and this time is t2, so we can say that the acceleration is change in velocity. That's why v2 minus v1 divided by t2 minus t1. So v2 minus v1 is final velocity minus inertial velocity is delta v vector divided by delta t. This is called acceleration. My dear friends, acceleration is also two types. One is average acceleration, another one is instantaneous acceleration. Two types. One is average acceleration and other one is instantaneous acceleration. So my dear friends,
average acceleration is nothing, it is a average is equal to total change in velocity upon total time taken to change the velocity, delta v vector upon delta t vector. And instantaneous vector is the instantaneous acceleration, means acceleration at a particular instant. So limit delta t टेंडिंग टू जीरो, अगर डेल्टा टी की वैल्यू लगभग जीरो के बराबर हो, सो एक्सेलरेशन जो हमने यहाँ पर डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी निकाला है, दिस शुड बी इक्वल टू डीवी ओवर dt, which is called rate of change in velocity, rate of change in velocity. Is it clear? Is it clear? Okay. Yes, sir. My dear friends, एक्सेलरेशन निकालने के बाद आप ओवरऑल एक रिलेशंस देख पा रहे होंगे, एक रिलेशन देख पा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रिलेशन ये कहता है अगर हमारे पास x फंक्शन ऑफ टाइम है, पोजीशन कोई टाइम का फंक्शन है, तो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम बनाने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, dx ओवर dt लगा। अब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम से एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम बनाने के लिए हमें फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, चाहे हम dv ओवर dt लिखे या फिर इसको d2x ओवर dt2 लिखे, बात एक ही है। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x, पोजीशन, दिस इज x is indicates the position and t is indicates the time, v indicates the velocity and a is indicates the acceleration. So my dear friends, अगर पोजीशन वर्सेस टाइम से हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम से अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम पे जाना है तो भी हम वेलोसिटी के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे या फिर पोजीशन के फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करेंगे। Is it clear? ओके, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्लीज। ओके, अगर रिवर्स में आप जाना चाहते हो, that you want to go in reverse form, reverse form में अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया हो और वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम बनाना हो, तो हम क्या करते, इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेट करते हैं। और वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम से पोजीशन वर्सेस फंक्शन ऑफ टाइम बनाना हो तो भी इंटीग्रेट ही करें। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता था, इंटीग्रेशन होता है कि नहीं होता। सो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम से, देखिए पोजीशन वर्सेस फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया हो, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम बनाना हो तो डिफरेंशिएट करिए। वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया और एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम बनाना हो तो वेलोसिटी के फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। अगर रिवर्स में जाना है, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है और वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम बनाना है तो इंटीग्रेट करिए, और वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम बनाने से पोजीशन वर्सेस फंक्शन ऑफ टाइम बनाना है तो भी आप उसको इंटीग्रेट करिए। लेट अस सी, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई वांट टू इलस्ट्रेट अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज we have the velocity of the particle, the velocity of the particle, velocity the velocity of particle varies with time, such as v is equal to 3t plus 2 meter. Okay, 3 meter per second. At t equal to 0, particle starts from
from origin. Then find the position of object of particle at t is equal to 3 seconds. Now, my dear friends, in this question, the velocity of the particle is continuously changes with the time. Every second, the velocity of the particle is different. The question is, at t equal to 0, the particle is moving. At t equal to 0, particle starts from origin. Means x should be 0 meter. Initial position क्या हो गई? 0 हो गई. अब आपसे पूछा गया है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बताना है t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे. तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या जाना है? वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम की तरफ जाना है. तो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम से अगर पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं. इज इट क्लियर? सो मेरे बच्चों चलो v लिख लेते हैं. हियर v इज इक्वल टू 3t प्लस 2. v का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? dx ओवर dt इज इक्वल टू 3t प्लस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3t प्लस 2 इंटू dt. इज इट क्लियर? और 3t प्लस 2 इंटू dt, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए. At t equal to 0, the position of the particle is 0, and time t equal to 3 seconds, the position of the particle is x. Is it clear? Now, my dear friends, इसको ऐसे लिख सकते हैं, the integration over 0 to x dx is equal to integration 0 to 3 बाहर लिख लीजिए t dt plus 2 integration over 0 to 3 dt. Is it clear? Now, my dear friends, integration over dx is, हमेशा याद रखिए, किसी भी वेरिएबल का dx पार्ट अगर लिखा हो तो उसका इंटीग्रेशन ऑलवेज क्या हो जाएगा? x. तो x का लिमिट लगा देते हैं 0 से x इज इक्वल टू 3. t का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो उसको मैं बता दूं, अगर यहाँ पर t टू द पावर n dt है तो इसके लिए क्या करते हैं? जितनी भी पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं डिवाइडेड बाय n प्लस 1. जो पावर में लिखा है वही डिनोमिनेटर में लिख देते हैं. thus यहाँ पर क्या आ जाएगा? पावर कितनी है बच्चों? 1 है, तो कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर बाई 2. 0 से 3 प्लस 2. यहाँ क्या लिखा है बच्चों? dt. जैसे dx का x हो गया वैसे dt का क्या हो जाएगा? हो जाएगा. लिमिट इज 0 to 3. Okay, my dear friends. Now let us see upper limit minus lower limit is equal to 3 by 2 over 3 का स्क्वायर is minus 0 square upper limit minus lower limit plus 2 into upper limit minus lower limit. अपर मतलब ऊपर वाली जो लिमिट है माइनस नीचे वाली. इज इट क्लियर? यस सर. नाउ बट मेरे बच्चों ये x हो गया. 9 इंटू 3 कितना हो गया? 27 by 2 प्लस 3 2 जा 6. रिजल्ट कितना आ गया बच्चों? बोलो बोलो. 12 plus 27 is 39 by 2 meter. So the position of the particle after t equal to 3 seconds, after t is equal to 3 seconds, the position of the particle is 39 by 2 meter. Is it clear? Sir. Is it clear? Okay. मेरे बच्चों यहां से एक छोटी सी बात सुनते हैं एक्सेलरेशन के बारे में और थोड़ा सा ध्यान देते हैं. एक्सेलरेशन मेरे बच्चों दो तरीके से हो सकता है. अगर जब भी एक्सेलरेशन के केस में अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम मिले, क्या मिले आपको? एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो और वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम, दोनों के केस में
एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम हो या वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम हो, सो ऑलवेज फॉर्मूला क्या यूज करना, dv over dt. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समटाइम्स कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन और वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन मिल सकता है, दोनों मिल सकते हैं। एक्सेलरेशन भी x का फंक्शन हो सकता है और वेलोसिटी भी x का फंक्शन हो सकता है। तो इस केस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं, v इंटू dv ओवर dx। यहां v क्या है, v होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी। इज इट क्लियर? अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन हो या फिर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन हो तो हमें क्या यूज करना है, v इंटू dv ओवर dx। और अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम है या वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है तो हमें क्या यूज करना है, dv ओवर dt। जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, आपको इलस्ट्रेशन के लिए और सिंपल बनाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ द फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? मींस वेलोसिटी एवरी सेकेंड पर एवरी मीटर पे बदलता है। अगर ऐसा है तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे? अगर एवरी मीटर पे बदल रहा है तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या है, हियर v is equal to 3x square plus 2x plus 5। ओके, आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए, फाइंड द एक्सेलरेशन एट x is equal to 2 मीटर, एट x is equal to 2 मीटर पे एक्सेलरेशन। मेरे बच्चों सबसे पहले इसका dv ओवर dx निकालेंगे ना, क्योंकि हमने बोला अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन हो तो हम क्या यूज करते हैं, v इंटू dv ओवर। तो dv ओवर dx का मतलब क्या हुआ कि इसको डिफरेंशिएट करना। करिए जरा, 3x x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 5 का 0, तो कितना आ गया बच्चों, 6x 6x plus प्लस 2। नाउ मेरे दोस्तों, बस बच्चे गलती क्या करते हैं पता है क्या, एक्सेलरेशन में v की जगह पे आपको क्या लिखना है, जिस x डिस्टेंस पे वैल्यू है, 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5, b ये दिया गया है ना, इंटू 6x प्लस 2। क्लियर? Yes, sir. एज वी नो, याद रखिए अगर कभी भी v f ऑफ x का फंक्शन हो तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, v इंटू dv ओवर dx। सो dv ओवर dx में dv ओवर dx तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, और v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी पोजीशन पे। 10 एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिख लिया, इनटू dv ओवर dx है 6x प्लस 2। किस पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना है हमें, 2 meter. 2 मीटर पे। एट x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, a इज एट x इज इक्वल टू 2 मीटर, a इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 6 इंटू 2 प्लस 2। मेरे बच्चे कितना आ गया, सो 12 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 14। सो ये कितना आ गया बच्चों, 9 प्लस 12 इज 21 इंटू 14 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 28 प्लस 1 इज 294। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 294 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन होती तो एक्सेलरेशन यही हो। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं और अच्छे से। हियर द एक्सेलरेशन इज 3x प्लस 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों यहां तो एक्सेलरेशन x का फंक्शन हो गया, तो अगर एक्सेलरेशन x का फंक्शन है सो बोल रहा है एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 velocity of the particle is 0 meter per second।
then find the velocity of particle after x is equal to 2 मीटर. ओके मेरे दोस्तों, इस बार एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया गया. तो अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन है, here acceleration is the function of position, so हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए बच्चों? बोलो बोलो बोलो. A is equal to v into dv over dx. Is it clear? So v into dv, और a कितना दिया गया? 3x plus 7. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इधर क्या लिखेंगे? v dv is equal to 3x plus 7 into dx. मैंने बोला है आपको, शुरुआत में ही बता दिया, अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जाना है तो ऑलवेज क्या करना है? इंटीग्रेशन करना. तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों? इंटीग्रेशन करेंगे. क्वेश्चन में बोला गया है एट x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है? 0 है, और x इज इक्वल टू 2 मीटर पे आपको वेलोसिटी फाइंड आउट. इज इट क्लियर? बोलो कोई दिक्कत? तो मेरे बच्चों, अगर मेरे को ऐसा करना है कि x इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी निकालनी थी, तो हम क्या कर सकते? अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अब इस बार प्लीज आप लोग हेल्प करो मेरी. यहां पर v की पावर 1 है, तो क्या हो जाता है? v स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज 0 टू v. इज इट क्लियर ना? अगर x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में भी वही लिख देते हैं. तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते? इंटीग्रेशन 3 बाहर x dx फ्रॉम 0 टू 2 प्लस 7 बाहर इंटीग्रेशन ओवर dx फ्रॉम 0 टू 2. मेरे बच्चे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? 3 x टू द पावर क्या है? 1 है, तो x टू द पावर 1 का मतलब 2 बाई 2. 1 प्लस 1 इज 2 ना. 0 टू 2 प्लस 7 इंटीग्रेशन ओवर dx इज x. इज इट क्लियर? लिमिट इज 0 टू 2. मेरे बच्चों, v स्क्वायर में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 0 बचेगा ना. अच्छा, v स्क्वायर बाई 2 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 इंटू 2 माइनस 0. 10 बच्चों. अब देखो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 12 माइनस 2, 12 बटे 2 इज 6 प्लस 14 is the answer is v square by 2 is equal to 20. So v square is equal to 40 and v is equal to 2 root 10 meter per second. Is it clear? So आपने देखा ना, आपने देखा कि नहीं देखा बच्चों, कि अगर मैंने आपको दोनों चीजें करके दिखाई, शुरुआत में एक क्वेश्चन बता दिया है पहले कि अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम हो, अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम हो या वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम हो तो सिंपली डिफरेंशिएट करना है. लेकिन एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन है या वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? v इंटू dv ओवर dx. आपने दोनों ही क्वेश्चंस देखे. मैंने पहला ऊपर क्वेश्चन लिया जिसमें वेलोसिटी x का फंक्शन था, यहाँ वेलोसिटी f ऑफ x था, और इसके नीचे वाला एक फंक्शन लिया जिसमें एक्सेलरेशन x का फंक्शन था. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Thank you so much for reply. Okay. अब एक बात और नोट पॉइंट सुनिए. नोट यहाँ एक्सेलरेशन के लिए मैं बता रहा हूं. अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन, बच्चों एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन हो
और आपसे टाइम के बारे में पूछा जाए कि टाइम, सो ऑलवेज आपको यूज करना है A इक्वल टू dV ओवर dt। लेकिन अगर पोजीशन के बारे में पूछा जाए सो आपको यूज करना है फॉर्मूला A इज इक्वल टू V dV ओवर dx। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? याद हो गया ना? अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन है और आपसे बोलता है कि सर टाइम निकालिए, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है dV ओवर dt, dV ओवर dt। और अगर पोजीशन पूछी जाए तो क्या यूज करना है? V dV ओवर dx। इज इट क्लियर? अच्छा, निगेटिव एक्सेलरेशन अगर निगेटिव है तो इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिटार्डेशन। इज इट क्लियर? बोलो कोई दिक्कत वाली बात? एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं, नोट पॉइंट का। मान लो हियर द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल इज माइनस kv स्क्वायर। k is the positive constant. Acceleration of the particle is minus kv square, and k is positive constant, then find the time and position of the particle, time and position of particle when particle become at rest, when particle become at rest। My dear friends, अब इस बार क्या आपसे पूछा गया है? आपसे पूछा गया एक फंक्शन है एक्सेलरेशन का माइनस kv स्क्वायर, के पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो आपसे पूछ रहा है आपको वो टाइम बताना है और वो पोजीशन बतानी है जिसपे पार्टिकल क्या हो जाता है? रुक जाता है। सो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? तो देखिए यहाँ पर दोनों चीजें पूछी गई है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया जस्ट अभी कि हियर अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हो और आपसे टाइम पूछा जाए तो आप क्या यूज करो? A इज इक्वल टू dV ओवर dt। और अगर पोजीशन पूछी जाए तो V इंटू dV ओवर dx। सो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में तो दोनों पूछा गया, इसका मतलब दोनों फॉर्मूले लगेंगे। दोनों फॉर्मूले लगेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस होगी। एक पहले फॉर टाइम करते भैया, A इज इक्वल टू माइनस kv स्क्वायर, ऐसे लिख लिया ना? A को क्या लिख यूज करेंगे? अब A को क्या करेंगे? dV ओवर dt इज इक्वल टू माइनस kv स्क्वायर। इज इट क्लियर? अच्छा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं dV, v स्क्वायर के नीचे मतलब dV के नीचे v स्क्वायर आना चाहिए ना, माइनस k dt। अब क्या करें? इंटीग्रेट करते हैं। एट t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी v नॉट रहेगी, ठीक है? और t टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो बच्चों एक बार बताओ, यहां पर इसको ऐसे लिख लेते हैं, v की पावर -1 -2 इंटू इंटीग्रेशन ओवर dv फ्रॉम v नॉट से कहां तक पहुंच जाएंगे हम? 0 तक, इज इक्वल टू माइनस, अच्छा dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। वेरी गुड, माइनस k t, लिमिट इज 0 से t। मेरे बच्चों v की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? v की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, यही तो कर रहे हैं। फिर तो v नॉट टू 0 इज इक्वल टू माइनस k t। v की पावर -2 प्लस 1 इज व्हाट? v की पावर -1, -2 प्लस 1 इज -1 इज इक्वल टू माइनस k t। यहां पर क्या हो जाएगा? 0 से सॉरी v नॉट से 0। इज इट क्लियर? आप देखो तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं? तो क्या बचा? 1 अपॉन v, लिमिट इज v नॉट टू 0 इज इक्वल टू k t। एक काम करते हैं,
अपर लिमिट 1/0 माइनस लोअर लिमिट 1/v0 इज इक्वल टू के टी। ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों? बोलो भाई। यहां से 1/0 इज कैन नॉट डिफाइन, बहुत बड़ा टाइम, बहुत बड़ा होगा ना, इनफाइनाइट, वेरी लार्ज, माइनस 1/v0। तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू में बहुत छोटी चीज घटाई जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा? टी इज वेरी लॉन्ग टाइम। बोलो भाई आसान, यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वेरी लॉन्ग टाइम, क्वेश्चन कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन। वेरी लॉन्ग टाइम मींस कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल नेवर कैन बी स्टॉप, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल नेवर कैन बी स्टॉप, ये कभी रुकेगा ही नहीं, कभी भी नहीं रुकेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब पोजीशन मान लो पूछ ली गई, तो एक्सेलरेशन फॉर पोजीशन, फॉर पोजीशन एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर होता है विच इज इक्वल टू ए इक्वल टू कितना दिया गया? माइनस के वी स्क्वायर। ए अगर माइनस तो क्या यूज करते हैं? वी डीवी ओवर डीएक्स इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर। एक वी से वी कैंसिल आउट हो गया ना शुरुआत में, क्या बन गया बच्चों? डीवी बाई वी इज इक्वल टू माइनस के डीएक्स। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन मार दो। एट एक्स इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v नॉट और किसी x टाइम पे वेलोसिटी हो गई 0। बेटा dx अपॉन x क्या होता है? सोचो सोचो सोचो। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln x। तो Natural dav अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? ln v। लिमिट इज 0 से v नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इज इट क्लियर? यहां से क्या हो जाएगा? ln 0 माइनस ln v नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके बच्चे, ln 0 इज ऑल्सो कैन नॉट डिफाइंड, सो कैन नॉट डिफाइन मतलब ln v नॉट माइनस ln 0 इज कैन नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स इट्स वेरी लार्ज वैल्यू इज इक्वल टू के एक्स। तो यहां से x भी कितना हो जाएगा? कुछ बड़ी वैल्यू में से कुछ छोटी वैल्यू घटा, कोई छोटी वैल्यू में से कोई बहुत बड़ा घटाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब या ये जो पार्टिकल है वो कहां पर बंद होगा? जाके नेगेटिव इन्फिनाइट पे, तो बहुत लंबी पोजीशन पे। तरीका समझ में आया क्वेश्चन करने का? बोलो कोई दिक्कत? तो याद रहेगा ना, एक छोटा सा प्रोटोकॉल बना, एक छोटा सा वो बना लेते हैं, डिब्बा, बॉक्स जिसको बोलते हैं। एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं और उस बॉक्स में ये बात लिख देते हैं हम लोग अच्छे से कि हाँ, उसमें एक बात लिख लेते हैं कि अगर एक्सेलरेशन के बारे में हम डिफाइन कर रहे हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन हो, सो हम यूज करेंगे फॉर्मूला dv ओवर dt। एक्सेलरेशन और फॉर टाइम, और एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी का फंक्शन हो और हम यूज कर रहे हैं v dv ओवर dx, तो ये कब यूज करते हैं? फॉर पोजीशन। इज इट क्लियर? एक्सेलरेशन अगर पोजीशन का फंक्शन है तो ऑलवेज यूज करना है v dv ओवर dx। दिस सेम फॉर्मूला इज वैलिड फॉर अगर vx का फंक्शन। और बच्चों अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है और आप तो यूज कर सकते हैं dv ओवर dt, और अगर आप वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो भी आप यूज कर सकते हैं dv ओवर dt। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में जाने के लिए ऑलवेज इंटीग्रेट करना होता है। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बनाने के लिए ऑलवेज इंटीग्रेट करना होता है। इज इट क्लियर? और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाने के लिए हमेशा डिफरेंशिएट करना। बोलो, ये डिब्बा बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है।
बहुत काम आने वाला है, इसलिए आप अच्छे से याद। कोई समस्या वाली बात? हाँ, वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन ऑलवेज डिफरेंशिएट। Constant. Constant. हाँ, थ्रू आउट द Uniform मोशन motion. आपका वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट बन जाए, ना ही मैग्नीट्यूड बदले और ना डायरेक्शन बदले। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मोशन को भी दो पार्ट में कल्टीवेट किया गया। एक किया गया आपके पास यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग ये है बच्चों कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर बच्चों स्पीड कांस्टेंट होगी सो एक्सेलरेशन क्या होगा? ऑलवेज जीरो। तो याद रखो, ऐसा पार्टिकल जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। बच्चों इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करना है, वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। This distance upon time is same valid for displacement upon time, because इस केस में पार्टिकल अपनी डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है। समझ में आ रही बात ना? मतलब स्पीड भी कांस्टेंट और वेलोसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए, आइदर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों ही बदलनी नहीं चाहिए। तो अगर दोनों ही नहीं बदल रही है, तो हमने अभी पढ़ा ना कि दोनों ही अगर नहीं बदल रही तो जो स्पीड होगी वही वेलोसिटी होगी, जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। सो ऑलवेज ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इज इट क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट मोशन कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों एक बात और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, ये जो यूनिफॉर्म मोशन है ना, इसको स्केलर मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या? स्केलर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही ना, तो हर जगह एक जैसा ही है, तो इट्स अ स्केलर मोशन। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कंटिन्यूअसली चेंजेस। एक्सेलरेशन आ रहा है फिर, है ना? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली चेंजेस, दैट्स व्हाई acceleration of the particle does not equal to zero. So such type of motions are called non-uniform motion. मेरे बच्चों, non-uniform motion में भी दो चीजें आती है। non-uniform motion अलग से मैं सेपरेट आपको बता रहा हूं। non-uniform motion अगर डिस्कस करने जाते हैं हम लोग, तो हम ये देखते हैं कि यार एक तो हमारे पास यहां पर होता है वेलोसिटी, यहां पर भी कांस्टेंट नहीं होती, और इस केस में भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। लेकिन बस अब होता क्या है? होता ही है, एक केस में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम यूज करते हैं v इक्वल टू u प्लस at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus twice as. Here v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. याद रखिएगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो इन तीन इक्वेशंस का हम जनरल यूज करते हैं। एक फोर्थ इक्वेशन और है जिसको हम डिराइव कर सकते हैं, अभी करेंगे। Sn is equal to u plus a by 2 into 2n minus. Is it clear? This is the nth displacement equation. अरे बच्चों, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। ये भी एक केस हो सकता है। तो यहां पर हम दो केसेस पढ़कर आए हैं अभी। एक हमने पढ़ा
अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन होगा तो हम क्या यूज करेंगे फॉर्मूला dv ओवर dt, और अगर एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन होगा तो हम क्या यूज करेंगे v dv ओवर dx। इज इट क्लियर? तो समटाइम्स नॉ, आप देखिएगा एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, मोशंस भी दो तरीके के होते हैं बच्चों, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट मींस इट इज इन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ना ही डायरेक्शन बदलनी चाहिए और ना ही मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए। तो उस तरीके के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और इस केस में हम यूज करेंगे velocity is equal to either distance upon time or displacement upon time. Is it clear? अगर velocity constant का बात कर रहे हैं, velocity constant की बात कर रहे हैं, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन भी बदलनी नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? तभी हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बच्चों, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी पार्टिकल की कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। इट इज वेरी, चाहे वो डायरेक्शन में बदले या फिर मैग्नीट्यूड बदले। अगर डायरेक्शन भी बदल गया तो भी वेलोसिटी बदल गई ना। सो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन फिर नॉन जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? नॉन जीरो होगा। Such type of motion is called non-uniform motion. अब नॉन जीरो एक्सेलरेशन भी दो टाइप से है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशंस भी दो टाइप का होता है। एक जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी तो डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं किसी बॉल को रिलीज करूं किसी हाइट से, h हाइट से, तो बताओ बच्चों इस पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो कांस्टेंट लगेगा कि वेरिएबल? अगर वैक्यूम है, मतलब एयर है सिर्फ यहाँ पर, एंड एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल सर कांस्टेंट, क्योंकि वो 9.8 लगेगा सर वो हाँ, ग्रेविटी का। सिर्फ 9.8 लगेगा जी। तो जी की वैल्यू फिक्स होती है ना 9.8, तो एक्सेलरेशन इस केस में कांस्टेंट है कि नहीं है? तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता है, वो नंबर के फॉर्म में हो, तो हम यूज करते हैं चार इक्वेशंस, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस इज v इक्वल टू u प्लस at, एंड सेकेंड इक्वेशन इज s is equal to ut plus half t square, and third equation is v square v minus u square square is is equals equal to to 2s. u square plus twice as. Here my dear friends, first is v equal to u plus at में v जो है वो फाइनल स्पीड है at after time t, and u is the initial speed at t equal to 0, and a is the positive acceleration and t is time. S is displacement. S is displacement. My dear friend, sometimes the acceleration is also not constant. Example के लिए आप जब अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, यहाँ पर एक एक्सेलरेशन लगा रहता है कि नहीं, एक एक्सेलरेटर लगा रहता है। उस गाड़ी को एक्सेलरेट करते ही स्पीड उसकी बढ़ना चालू हो जाती है, ठीक है ना। तो कई बार हम अपनी स्पीड को पोजीशन के हिसाब से भी चेंज करते हैं और कई बार हम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देखा जाए, अगर हम हाईवे पे चल रहे हैं तो अगर हमें मान लीजिए आप हाईवे पे चल रहे हो और हाईवे पे चलते ही आपको बहुत सारा सन्नाटा मिल गया रास्ते में। सन्नाटा इन द सेंस कोई भी आपको रास्ते में कोई मॉब नहीं है, कोई गाड़ी नहीं चल रही है, बिल्कुल यहां से लेकर यहां तक कैसा है 20 किलोमीटर तक कोई कार नहीं, कुछ नहीं। तो आप क्या करोगे? स्पीड में वो चलोगे कि फास्ट चलोगे? फास्ट सर। फास्ट। तो आपका इस केस में एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन होगा ना। लेकिन इसी बीच में एक डॉग आ जाए तो क्या करोगे?
ब्रेक Lock का लगा आराम ना हो पोजीशन, सकते। तो पोजीशन कुछ दूरी के बाद आपका एक्सेलरेशन कम ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिससे आपकी वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है। इज इट क्लियर? लेकिन कई बार हमें ऐसा भी करना होता है, टाइम के अकॉर्डिंग भी चलना होता है। अगर आपने अपनी फ्लाइट बुक करके रखी है और आपको पहुंचना टाइम से है, तो आप क्या करते हो, टाइम के हिसाब से एक्सेलरेट करते हो गाड़ी को। तो हमें ये दोनों ही बात ध्यान रखनी है। कई बार हम एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और कई बार एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन। एक्सेलरेशन पोजीशन का जब भी फंक्शन हो तो यूज करते हैं वी डीवी ओवर डीएक्स, और एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी का फंक्शन हो तो यू dv टाइम by का dt। फंक्शन हो तो यूज करना है डीवी ओवर डीटी। इज इट क्लियर? इज इट Yes, sir. क्लियर मेरे बच्चों? Yes, sir. थैंक यू। सो माय डियर फ्रेंड, हम आज एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ऑफ मोशन, एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट in uniform acceleration। बच्चों सबसे पहली बात समझिए, अगर कहीं रेस्ट पे लिखा हो, रेस्ट मतलब वेलोसिटी जीरो, वी जीरो वो भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही जीरो हो जाने चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. बोलो ना। Yes, रेस्ट sir. अगर कहीं लिखा हो, ये बात है पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। सो अगर ऐसा कहीं लिखा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब दैट्स इनिशियल व्हाई वेलोसिटी 0 हो थिंक जाती है। अबाउट दैट कि वेलोसिटी जीरो, वी जीरो एंड टी इज ऑल्सो जीरो। स्टार्ट मतलब जहां से चलना चालू करेंगे हमारा टाइम वहीं से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, है ना। सो टी इज जीरो एंड वी इज जीरो। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये दो पॉइंट्स आप दिमाग में रखिएगा। अगर आप मोशन को एनालिसिस कर रहे हैं और आपको बोला जाए रेस्ट, तो समझ लीजिए वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, जीरो हो गई। अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला जाए सो वेलोसिटी भी जीरो और टाइम भी जीरो। अगली एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करी जाए सो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मस्ट बी जीरो। सिमिलरली अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करी जाए, मैक्सिमम वेलोसिटी की, सो इस केस में भी एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। याद रखना दोनों ही पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। Sir, अगर maximum का नहीं कांस्टेंट समझा। वेलोसिटी के बारे में बात किया जाए तो भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, और अगर मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में बात करी जाए तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, जीरो ही होगा। इज इट क्लियर? सर मैक्सिमम का नहीं समझा। हाँ मैक्सिमम का नहीं समझा सर। एक मिनट यार, देखो अच्छा एक बात बताओ, एक बात सुनो, आपको मैक्सिमम की बात नहीं समझ। अगर वेलोसिटी किसी का फंक्शन, टाइम का फंक्शन, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा बोलो। कोई भी फंक्शन, एक सेकेंड आपको मैं रिमेंबर कराता हूं मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू। इफ द y is the f of x, so for maxima and minima, what? For maxima and minima क्या करते थे बच्चों, क्या करते हैं? Differentiation. हाँ Double differentiation. हाँ बोलो बोलो, Sir, differentiation. डिफरेंशिएशन करते थे क्या रियली? क्यों उस डिफरेंशिएशन को जीरो बोलते थे? हाँ सर। हाँ क्या करते हैं, dy ओवर dx इक्वल टू जीरो। तो हम यही तो करते थे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा द dy ओवर dx शुड बी जीरो। एम आई राइट और रॉन्ग ना? Yes sir. यही करते हैं ना। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर वेलोसिटी कोई फंक्शन है किसी टाइम का, तो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, फॉर मैक्सिमम
और मिनिमम वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए, इसका डीवी ओवर dt जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और डीवी ओवर dt क्या निकाला है बच्चों, डीवी ओवर dt आपने क्या बोला है, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन। अरे यार क्या कर रहे हो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ना, ये एक्सेलरेशन होता है कि Yes, नहीं sir. होता। Yes, तो एक्सेलरेशन इज जीरो। समझ गए ना आप, Yes, अब sir. समझ Yes, गए sir. कि यही लॉजिक है कि अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करी जाए तो एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो। इज इट क्लियर? yes, Yes, sir. sir. ओके। और कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में कांस्टेंट का देखो सुनो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। मैक्सिमम है तो भी जीरो, और मिनिमम वेलोसिटी के केस में भी क्या होगा बच्चों, मिनिमम वेलोसिटी के केस में भी क्या होगा, जीरो। तो अगर तुमसे कभी पूछा जाए वेलोसिटी कांस्टेंट बताओ तो एक्सेलरेशन को जीरो कर देना, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी जाए तो भी एक्सेलरेशन को जीरो कर देना, और अगर आपको पूछा जाए मिनिमम वेलोसिटी तो भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। याद रखिए, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें तो एक्सेलरेशन जीरो, मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें तो भी एक्सेलरेशन जीरो, मिनिमम वेलोसिटी की बात करें तो भी एक्सेलरेशन जीरो। याद रखना, Zero. ये 3 पॉइंट याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बोलो। किसी बच्चे को इसमें लग रहा है कुछ दिक्कत? चलो, तो हमें ये मिल गया। नाउ स्टार्ट द एनालिसिस। व्हाट इज द एनालिसिस? लेट at t equal to 0 particle starts with initial speed u in constant acceleration a then after time t the velocity of the particle becomes v. The velocity of particles becomes v. So my dear friends, यहां पर acceleration as we know a is equal to what, dv over dt. Is it clear? ऐसा ही पढ़ा है ना हम लोगों ने। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, a dt इज इक्वल टू dv। मेरे बच्चों a कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते, कांस्टेंट को बाहर लिख देते, यहां पर dv होना चाहिए। और मेरे भैया एट t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है, u। किसी t टाइम पर वेलोसिटी क्या है, v। सो भैया dt का इंटीग्रेशन बताओ क्या हुआ, dt का इंटीग्रेशन t लिमिट इज 0 से t। Zero. dv to का t. इंटीग्रेशन क्या हो गया, v लिमिट इज V. u to v। U to मेरे V. बच्चों यहां से देखो a इंटू t माइनस 0 is equal to v minus u. Is it clear? अपर लिमिट माइनस लो, Yes. यहां से सॉल्व किया तो क्या आ गया, v इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अरे यार बोलो ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। Okay. Now suppose let us assume during during time t, let us assume during time t the displacement, the position of the particle, is xf. The position of particle
is xf. Initially, particle start from xi position. Yeah, initial position of the particle is xi. Initial position of particle is xi. Is it clear? So मेरे बच्चों, अब क्या हो रहा है इस बार देखिए क्या हो रहा है कि आपको बोला गया है कि t टाइम के बाद x साइड से उसकी पोजीशन किस पे पहुंच जाती है, x पे पहुंच जाती है. तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों, क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at. मेरे बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं, v को क्या लिख सकते हैं, dx ओवर dt, ऐसे करके लिख सकते हैं, इज इक्वल टू u प्लस at. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, dx इज इक्वल टू u प्लस at इंटू dt, ऐसे करके लिख सकते हैं. इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं. उसने बोल के रखा है एट t इक्वल टू 0, पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, x साइड, और t टाइम पर क्या पोजीशन हो जाती है उसकी, xf. ओके बच्चों, इसको ऐसे लिख लो, द इंटीग्रेशन ओवर xi टू xf dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t u बाहर dt प्लस a बाहर 0 टू t dt. मेरे बच्चों इसको इंटीग्रेट करते हैं. आप मेरे को बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x. वेरी गुड. एंड दिस इज xi माइनस xf इज इक्वल टू u बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट इज 0 टू t और प्लस a, t इंटू dt इज t की पावर 1 है ना, तो 1 प्लस 1 इज 2 डिवाइडेड बाई 2, लिमिट इज 0 टू t. तो मेरे बच्चे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, xf माइनस xi इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस हाफ a इंटू t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. मेरे बच्चों आप मेरे को एक बार बताओ, xf माइनस xi इज इक्वल टू कितना हो गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया. xf माइनस xi क्या है, चेंज इन पोजीशन है कि नहीं है, अरे बोलो ये पार्टिकल के पोजीशन चेंज हुई है कि नहीं हुई है. सो अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन को ही क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट. thus this delta s, displacement is delta s is equal to ut plus half of at square. This is the second equation of motion. Is it clear? Now my dear friends, the third equation आप एक चीज देखो, हमने क्या किया, एक और देखते हैं. फ्रॉम as we know acceleration is as we know a is equal to v into dv over dx. ये फॉर्मूला हम जानते हैं सब लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a dx is equal to v dv. Is it clear? इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड. एट एक्स आई पर इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी क्या थी, u थी, और xf पे वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई. सो मेरे बच्चों a कॉमन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ओवर xi टू xf dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर u टू v dv. मेरे बच्चों dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x. वेरी गुड. x लिमिट इज xi टू xf इज इक्वल टू v dv का इंटीग्रेशन
v square by square by 2 into v. u to v. Is it clear? v. तो बच्चों एक बार अपर लिमिट 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 2a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू v स्क्वायर v माइनस। square minus u square. बच्चों ये क्या लिखा हुआ है आपके पास? चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज डेल्टा एस। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से ये बन जाएगा ट्वाइस ए into s is equal to v square minus u square. So v square is equal to u square plus twice as. This is the third equation of motion. Third equation of motion. Clear, my dear friends? The note point, these equations are vector equations. Note point ये है कि ये equations कैसी हैं? Vector equations हैं. These equations are vector equations, so used with proper sign convention. मैं क्या बोल रहा हूँ? नोट पॉइंट क्या है? These equations, अच्छा सुनो ना, तुम खुद ही सोचो, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? तो ये जो भी इक्वेशंस बनी है ये वेक्टर इक्वेशंस हैं या नहीं? सो दीज इक्वेशंस आर वेक्टर इक्वेशन और नॉट? सो दीज इक्वेशंस आर वेक्टर्स इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन. So use these equations with proper sign convention. These equations with proper sign convention. Proper sign convention means in a rectilinear motion, we have two direction. For example, if you are moving along horizontal direction, so either you are moving towards left, I'm sorry, this is right side, so this is right or left. Am I right or wrong? Am I right or wrong? है ना? लेफ्ट. सो या तो बच्चों आप लेफ्ट पे जा सकते हो या राइट में जा सकते हो. तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपने अगर राइट साइड को पॉजिटिव मान लिया, सो लेफ्ट साइड आपकी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी. और अपवर्ड डायरेक्शन हो सकती है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन हो सकती है. तो एक बार अपवर्ड को अगर पॉजिटिव मान लिया, सो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो ये दो साइन कन्वेंशन आपको ही ध्यान रखने हैं. रेक्टिलिनियर मोशन में और कोई हो ही नहीं सकता. ठीक है ना बच्चों? आइदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड और अपवर्ड और डाउनवर्ड. तो एक बार अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया तो डाउनवर्ड नेगेटिव. तो जो वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस हो जाएंगी. वेक्टर फॉर्म ऑफ all three equations are, number one is vector v is equal to vector u plus vector a into t. ठीक है ना? And this is the first equation of motion. Vector s is equal to vector u into t plus half of a vector into t square. This is the second equation. Third equation is vector v dot vector v is equal to vector u dot vector u plus 2 vector a dot vector. Is it clear? This is the third equation. Okay मेरे बच्चों, अब आपको वेक्टर ये इंडिकेट करता है, कोई भी वेक्टर ये बात बताता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों हैं. अब इनके पास मैग्नीट्यूड को भी देखना है और उसके साथ साथ आपको डायरेक्शंस को. Is it clear? Now मेरे बच्चों, एक और फोर्थ इक्वेशन है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं. तो एनालिसिस ऑफ nth displacement motion.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nth डिस्प्लेसमेंट मोशन। तो इसको बहुत अच्छे से देखने के लिए आप मान लो एक पार्टिकल है जो स्टार्ट होता है, जैसे ही चलना चालू करता है तो उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है ना। मैंने बोला ना स्टार्ट, तो उसका टाइम भी स्टार्ट हो गया। जब तक वो रुका हुआ है, जैसे मैं अभी रुका हुआ हूं तो मेरे चलने का समय चालू हुआ क्या, लेकिन मैं बोलूंगा स्टार्ट तो मेरा टाइम भी स्टार्ट होगा। कौन सा स्टार्ट? टाइम स्टार्ट होगा मोशन वाला, ठीक है ना। तो t इक्वल टू 0 पर अगर वो चलना चालू करता है तो ये उसका मोशन टाइम, ठीक है। इस टाइम पे मान लो उसकी कोई ना कोई इनिशियल स्पीड u रही, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से चल रहा है, a इज कांस्टेंट। अब बच्चों मान लो t इक्वल टू 0 से वो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहां पहुंचता है, तो ये क्या हो रहा है, अपने पहले सेकंड के, अपने मोशन के पहले सेकंड में वो कितना डिस्टेंस चलता है, s1 डिस्टेंस चलता है कि नहीं चलता। इज इट क्लियर? s1 डिस्प्लेसमेंट, समझ गए ना। इसी तरीके से आगे समय बढ़ता जा रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया, अगला टाइम क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड हो जाएगा। ऐसे टाइम बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। तो अपने पहले सेकंड में s1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, अपने दूसरे सेकंड में s2, तीसरे सेकंड में sn। यही है nth डिस्प्लेसमेंट, कि अपने nth सेकंड में वो कौन सा मोशन, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। आई मीन कि अगर मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर यहां चला और t इज इक्वल टू nth सेकंड पे वो यहां पहुंचेगा, t इक्वल टू nth सेकंड पे वो यहां पहुंचेगा, तो nth से पहले वाला टाइम क्या हो जाएगा, n-1। तो ये जो टाइम होगा इसी को क्या बोलेंगे आप, snth। क्लियर? जैसे पहले सेकंड में उसने कितना चला, 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस को पहला सेकंड बोला गया। दूसरे सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो दूसरे सेकंड कब चालू होगा उसका, पहले के बाद उसका दूसरा समय चालू होगा ना। तो दूसरे सेकंड को खत्म होते होते वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उससे सेकंड डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तीसरे सेकंड में दूसरे सेकंड के खत्म होने के बाद और तीसरे सेकंड से खत्म होने से पहले जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसके तीसरे सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस होगी। इसी तरीके से nth में वो जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है उसी को बोलते हैं nth डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? बोलो भाई, कोई दिक्कत? लेट अस सी कैसे निकालेंगे। जैसे अगर मान लो ये s सेकेंड निकालना, सेकेंड में निकालना है, तो क्या कर दे, टोटल 2 सेकेंड में चला हुआ डिस्टेंस माइनस s1, यही तो होगा। अरे भाई ऐसे बोलो, ऐसे मान लो sn निकालने के लिए क्या करोगे, sn डिस्प्लेसमेंट माइनस का sn-1 डिस्प्लेसमेंट, यही टाइम होगा कि नहीं होगा। अच्छा बच्चों, अगर पार्टिकल u स्पीड से चलता है t इक्वल टू 0 पर, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। सो फॉर t इज इक्वल टू n-1, s पर sn-1 कितना हो जाएगा बच्चों, u इंटू n-1 प्लस हाफ ऑफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा बच्चों, बोलो। ओपन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा, sn-1, दिस इज un माइनस u प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ a माइनस 2an बाई 2, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन कर लिया ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इज इट क्लियर? और a बाई 2 को अंदर भेज दिया। मेरे बच्चों ये हो गई इक्वेशन। अब फॉर t इज इक्वल टू n के लिए बताओ sn कितना होगा, तो un प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर, t की जगह n लिख दिया ना। अब मैंने बोला nth डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, nth डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये वाला बताओ, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो sn में से sn-1 को क्या करना चाहिए, सबट्रैक्ट कर देना चाहिए। सो nth डिस्प्लेसमेंट, nth displacement is snth is equal to sn
माइनस एस एन माइनस 1। वैल्यू डाल देते हैं बच्चों, वैल्यू डालिए। एस एन कितना है, यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस यू, अब देखिए एस एन माइनस 1 ये लिखा हुआ है, सो दिस इज यू एन माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस ए बाई 2 माइनस 2 ए एन बाई 2। इज इट क्लियर? बोलो भाई। अच्छा बच्चों, अब माइनस को अंदर भेज के कट पिट करते हैं कुछ। एस एन इज इक्वल टू एस एन एथ इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू प्लस माइनस माइनस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बाई 2 माइनस माइनस 2 ए एन बाई 2। इज इट क्लियर? अच्छा बच्चों, हाफ प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, प्लस का यू एन माइनस के यू एन से कैंसिल आउट होगा, तो एस एन एथ कितना आ जाएगा बच्चों, u माइनस a बाई 2 प्लस 2an बाई 2। मेरे बच्चों इस टर्म से अगर मैं a बाई 2 पॉजिटिव कॉमन करूं, देखना a बाई 2 अगर मैं कॉमन करूं, इतनी दो इक्वेशंस लिख सकते हैं ना कॉमन करके a बाई 2, तो क्या आ जाएगा u प्लस a बाई 2 कॉमन किया तो बचा क्या, 2n माइनस 1 बचा कि नहीं बचा? इधर देखो 2n बचा और इधर a1 बचा, तो 2n माइनस 1, तो दिस इज फोर्थ इक्वेशन ऑफ displacement covered by the particle in nth second of its motion. Is it clear? Is it clear? कोई समस्या बच्चों? It is the fourth displacement. This is also a vector quantity. This is also a vector equation. This is also a vector equation. तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? वेक्टर एस एन एच इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू 2n माइनस 1। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द वे। तो बच्चों ऑल फोर इक्वेशंस रिमेंबर, आप पहले तो दो इक्वेशंस जानते ही हैं, तीसरी आपको बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और लास्ट फोर्थ इक्वेशन इज u plus a by 2 into 2n minus। For better clarification, let us see again। हाँ भाई, एक बार और देख लेते हैं। सो एक बार फिर से समझ लीजिए एनालिसिस ऑफ nth डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है। nth डिस्प्लेसमेंट वो टाइम है जो अपने मोशन, जब से वो चलना चालू हुआ, अपने मोशन में के समय में, अपने मोशन के टाइम में वो कितना डिस्प्लेसमेंट चलता है, उसका एनालिसिस करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, सो इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन देन हियर द t इक्वल टू 0, यहां से उसका मोशन का समय चालू हो गया, तो मोशन स्टार्ट हो गया, टाइम स्टार्ट हो गया। अब पहले सेकंड में वो जितना चला वो उसका क्या हो जाएगा, पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे सेकंड में वो जितना चला, 1 से लेकर 2 सेकंड तक जितना टाइम हुआ वो उसका दूसरा समय है कि नहीं है, तो अपने दूसरे समय में, दूसरे सेकंड में वो जितना चलेगा उसको यूज करेंगे सेकंड डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से t इक्वल टू सेकंड से लेके t इक्वल टू 2 सेकंड से लेके t इक्वल टू 3 सेकंड तक, ये उसका तीसरा मोशन है। देखो ये हो गया पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से nth की अगर बात करें तो nth, जैसे तीसरे की बात कर रहे हैं तो t3 माइनस t2 हुआ है कि नहीं हुआ। इसी तरीके से nth की अगर बात करें हम, तो nth के केस में हम बात करेंगे t इज इक्वल टू n से लेकर t इज इक्वल टू n माइनस 1s। तो ये जो डिस्टेंस होगी या डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसके nth टाइम में ट्रैवल किया गया। इज इट क्लियर? तो जैसे कि S3 की अगर बात करते, S3 की बात करते तो S टोटल में से
हम अगर दूसरा समय घटा देते, दूसरा डिस्प्लेसमेंट घटा देते, तो हमें ये वाला मिल जाता कि नहीं मिल जाता। इसी तरीके से nth के केस में अगर हम टोटल में से Sn में से Sn-1 घटा दें तो हमें Snth मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ओके भाई, तो हमने 2 बार फॉर्मूला यूज कर लिया। एक बार हमें पता है किसी भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला है वो यूज किया जाता है S = ut + ½ of at²। t = n-1 रखने पर आपकी इक्वेशन ये बन जाती है और t = n रखने पर इक्वेशन ये बन जाती है। मेरे बच्चों, अगर ये दोनों वैल्यूज निकाल ली तो nth डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाता है। इट्स a u + a/2 × 2n-1। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सर इन दोनों में से मैं कब ये फॉर्मूला यूज करूं S = ut + ½ at² और कब यूज करूं u वेक्टर u × a/2 × 2n-1। मेरे बच्चों, मैं आपकी इस समस्या को भी दूर कर देता हूं, इस प्रॉब्लम को भी। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो ड्यूरिंग, या आपको ड्यूरेशन जैसा फील हो, इंटरवल, टाइम इंटरवल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू, फ्रॉम t1 to t2, ऐसा कुछ लिखा हो, फ्रॉम t1 to t2। अगर ऐसा कुछ भी आपको नजर आता है ड्यूरिंग, टाइम इंटरवल या t1 t2, तो आप समझ लेना कि आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। इज इट क्लियर? अगर आपको कहीं सिर्फ इनटू दिख जाए, सिर्फ एक वर्ड इनटू, इज इट क्लियर, तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। रट गया ना? समझ में आ गया कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है? सो नाउ दिस इज ओके।